नमस्कार एवरीवन। बच्चों आज हम 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट वाज अबाउट द रीस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड टुडेज टॉपिक इज अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. As we have seen, there are 3 articles. According to that, we can announce the emergency in a nation: 352, 356, 360. So accordingly, we are here to discuss about the article mainly 352, जहाँ पे इंटरनल अगर ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट हो रहा है देन इमरजेंसी इज गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड. सो फ्रॉम स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स इंडिया वॉज द कंट्री वेयर वन पार्टी सिंगल पार्टी वॉज डोमिनेटिंग एंड दैट वॉज कांग्रेस. कांग्रेस का डोमिनेशन था स्टार्टिंग से एंड द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस वॉज इंदिरा गांधी. सो एट दैट टाइम few things were there which happened and accordingly that emergency was declared by Indira Gandhi. So how the incident happened and how the things just were going on one by one, we will focus on that. On 12 June 1975, Justice Jagmohan Lal Sinha of Allahabad High Court passed a judgment about the Indira Gandhi's election to the Lok Sabha invalid. अब उन्होंने एक जजमेंट पास किया. किसने? हाई कोर्ट के जज ने 12 जून 1975 को that the process of election, how the Indira Gandhi was elected in 1975, that is invalid. So when this judgment came into being, so there was a situation of turmoil. Now it was a question mark on Indira Gandhi, who was supposed to be the most powerful leader of that time. The lady was dominating and powerful also. So she used the services. अब क्या blame था उन पे कि उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विसेज को यूज़ किया ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, which is strictly prohibited. Once the person is in government servant, so the person should not be used in any election campaign because the person is working for the government, should not be used for any party. So this was the blame on that. Then it was declared that the election is invalid. So on 24 June, the Supreme Court granted partial stay. फर्स्ट जो था इनवैलिड हो गया कि जो एमपी चुनी गई हैं वो, दैट इज़ रॉन्ग. एंड जब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एमपी ही नहीं रहेगा तो उसको दोबारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसीजर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कि द एमपीज आर देयर इन द लोकसभा एंड व्हेन द एमपीज आर गोइंग टू कास्ट द वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, ओनली देन प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड. सो हेयर एंड शी यूज द सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन. ऑन 24 जून सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पार्शियल स्टे डाल दिया ऑन हाई कोर्ट्स ऑर्डर. कौन सा ऑर्डर? कि जो इंदिरा गांधी जो हैं उनका जो इलेक्शन है वो इनवैलिड है. एंड बिकॉज कारण क्या बताया कि दे वर यूजिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन. सो देयर वाज अ पार्शियल स्टे ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर्स एंड देन शी कुड रिमेन एमपी बट नॉट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा. कि एमपी तो रहेंगी वो बट लोकसभा की प्रोसीडिंग जो है उसमें वो पार्ट नहीं लेंगे. सो दिस वॉज द big decision. This was putting the question mark on the position of the prime minister. If the prime minister is elected due to wrong particular means, and if something happens wrong in the election of prime minister. So this happened at time. Then opposition party leader Jayaprakash Narayan asked for the resignation of Indira Gandhi. When once the decision is given by High Court, then there was a louder voice by the opposition party. What sort of voice? They wanted the resignation of Indira Gandhi from his post of prime minister, and massive demonstrations were made. So those who were the opposition at the time, till we can say at the time, till that time, oppositions were not that much strong, but still protests were made, agitations were made, and the leader was Jayaprakash Narayan. So he asked for the resignation and that massive demonstration was done against her कि जो इंदिरा गांधी है she should leave the place of her. Then it was the question mark on the authority of the government. So that time when there was a type of turmoil, people were protesting, strikes were going on, they were raising their voice against the present government. So what they did, they just declared emergency.
अब इमरजेंसी का कारण क्या बताया, व्हेन देयर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन 352 क्या कहता है आपका, इफ देयर इज अ थ्रेट इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि 352 आर्टिकल कहता है, उस समय इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर हो सकती है इफ देयर इज एनी थ्रेट फॉर द पर्टिकुलर रूलिंग सिस्टम, सो देन द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। सो अब इमरजेंसी होगी तो क्या होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सम स्पेशल पावर्स टू गिवन टू द गवर्नमेंट वंस इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। एक बार अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर आ जाती हैं, बिकॉज द सिनेरियो विल बी टर्न फ्रॉम डेमोक्रेटिक टू डोमिनेटिंग फीचर। सो दिस विल हैपन एट द टाइम व्हेन द डेमोक्रेसी विल बी डिक्लेयर्ड एंड रेस्ट्रिक्शन ऑल और एनी फंडामेंटल राइट्स। दूसरी बात क्या होती है, जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ईदर फ्यू ऑफ देम और ऑल फंडामेंटल राइट, सारे फंडामेंटल राइट को चाहे तो वो या कुछ फंडामेंटल राइट्स को दे कैन रिजेक्ट, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि द पीपुल विल नॉट बी एबल टू यूज, नॉट बी अलाउड टू यूज द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। देन this time, the time of emergency is the time of turmoil where normal democratic politics cannot function. नॉर्मल में क्या होता है, वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ, वी कैन रेज आवर वॉइस, वी कैन डू द स्ट्राइक, वी कैन डू द प्रोटेस्ट, वी कैन कॉल एन असेंबली, नथिंग कैन बी डन, नॉर्मल एक्टिविटीज विल बी कैंसल्ड, सो it will be due to the emergency. On 25th June 1975, the PM recommended the imposition of emergency to President Fakhruddin Ali Ahmad. अब 25th June was the date. ये डेट जब आई, उन्होंने प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम किया कि इमरजेंसी जो है दैट इज टू नीड टू बी डिक्लेयर्ड। अब देखिएगा, अब दिस हैपेंड इन द रिवर्स वे, कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म लेटर ऑन बट इट वॉज इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर अर्लियर। इमरजेंसी पहले डिक्लेयर हुई और कैबिनेट को बाद में इन्फॉर्म किया गया, एंड कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन 26th of June at 6 AM about the emergency. So when emergency was announced, then the electricity, the power cut off of the all big news paper offices, because what they want to have wanted to have restrictions on the press also. So how the things were repressed, how the things changed, how the things were banned at the time, the story is of emergency is about that. So see, this was the main misleading ki if the things are, if anything is going to be decided, there should be the proper discussion among the cabinet. But what it was seeing, that it was the one-sided decision that was taken by Prime Minister Indira Gandhi. एक तरफा किया गया फैसला हो सकता है क्योंकि इसमें जो है कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म लेटर ऑन। सो दिस वॉज द सिनेरियो। आप देखिए कि क्या हुआ था, पहले हाई कोर्ट के जस्टिस ने क्या किया, इंदिरा गांधी की जो इलेक्शंस हुए उनको इनवैलिड डिक्लेयर किया। क्यों? शी हैज़ यूज्ड गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। देन एससी ने, जो सुप्रीम कोर्ट थे, उसने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाया। देन देयर वाज अ अपोजिशंस रेज्ड वॉइस, जयप्रकाश नारायण जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड देन हाउ टू मेक देम सेटिस्फाई। तो उनको जो प्रोटेस्टर थे उनके जो रिवोल्ट था, वो जो एजिटेशन था, दैट वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो देयर वाज अ डिमांड फॉर द इमरजेंसी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की जो हमारा इंटरनल डिस्टर्बेंसेज हैं वो गवर्नमेंट के लिए थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। सो वी नीड टू डिक्लेयर द इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। सो दिस हैपन एंड देन अपोजिशन लीडर जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने क्या कहा कि देयर शुड बी रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि वो रिज़ाइन करें। वाई? बिकॉज ऑन वट बिहाफ शी हैज़ सेलेक्टेड, ऑन वट बिहाफ शी इज़ गोइंग टू बी इन द गवर्नमेंट, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। सो दिस वॉज डन। देन देयर वॉज रिस्ट्रिक्शंस फॉर ऑल। अब रिस्ट्रिक्शन में क्या होता है, या तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे के सारे बैन होंगे, या एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स शुड बी बैन। नाउ नॉर्मल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कैन नॉट फंक्शन, और जो नॉर्मली पॉलिटिक्स फंक्शन करती है वो भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। दिस वॉज एट द टाइम ऑन 25th of June शी रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी टू प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद, और 26 जून को जब वो
आपकी अलाउ हो गई, आपका अप्लाई हो गई इमरजेंसी, देन इट वॉज इन्फॉर्म टू द कैबिनेट। अब देखें आप कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। इमरजेंसी हमने लागू कर दी, बट उससे कितनी सारी डेमोक्रेसी जो थी उसको हर्ट हुआ, एंड हाउ मच दैट पर्टिकुलर प्रोटेस्ट एंड द थिंग्स वर बैंड, सो मेनी थिंग्स वर रिस्ट्रिक्टेड, सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस वर मेड, सो इट वॉज अबाउट दैट। सो स्ट्राइक्स वर बैंड, क्या हुआ, जो स्ट्राइक थी आज हम कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, बैंड हो गई। अपोजिशन लीडर्स इन जेल, जो भी अपोज कर रहा था दे वर सेंट टू द जेल। मतलब इस मीन्स आपने ऑप्रेसिव वे में अपने क्रिटिसिज्म करने वालों को, अपने अपोजर्स को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए यू टुक दिस स्टेप। देन फ्रीडम ऑफ प्रेस सस्पेंडेड, अब सेंसरशिप ऑन प्रेस हो गई कि प्रेस को क्या छाप रहे हैं, वॉट एवर दे वॉन्ट टू पब्लिश, दे हैव टू टेक द अप्रूवल फर्स्ट, पहले अप्रूवल करवा के फिर वो पब्लिश कर सकते थे। दे वर नॉट एबल टू प्रेजेंट, दे वर नॉट अलाउड टू प्रेजेंट वॉट एवर दे वॉन्टेड टू। अब द नेक्स्ट वन, देन द पर्टिकुलर एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस which were relating to the religious feeling and the different communities, they were restricted। इसमें है आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, that is RSS, the जमायत उल इस्लामी, these were banned। ये अपना प्रोपोगेट नहीं कर सकते, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी चीज़ों का लेकर मीटिंग्स नहीं कर सकते। सो इन सच अ वे दीज वर बैंड। Then fundamental rights were suspended, whatever fundamental rights are given by the constitution, those all fundamental rights were suspended। मतलब आपके जो अधिकार आपको डेमोक्रेसी देती है at the time of the emergency, those all fundamental rights were taken away from you। Then people arrested on apprehension के बेस पे, उसने ऐसा किया नहीं है, उसने कोई गलत नहीं किया, बट ऐसा करना दे, उस पर्टिकुलर बेसिस पे दे वर अरेस्टेड। सो इट वॉज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि पहले ही लोगों को डिटेन कर देना और उनकी कोई सुनवाई ना होना। इस समय हेबियस कॉर्पस कहते हैं ना हम, कि पर्टिकुलर टाइम में उनको दे हैव टू बी इन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट फॉर ट्रायल, ऐसी कोई सुनवाई उस समय नहीं थी, हेबियस कॉर्पस ले लिया गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लार्ज स्केल अरेस्ट, सो मेनी पीपल वर अरेस्टेड एट द टाइम, there was a large number of people, those who were arrested, so it was the voice from the large mass, they were not they were there, those who were standing against the government के against वो stand कर रहे थे। So now how the people were suppressed, how the things were changed at the time, these all are showing about the glimpse of that। अब ऐसा नहीं है कि सारे अखबारों को बैन कर दिया गया या चीज़ें जो थी उन्होंने अपने अंडर में ले ली, एंड नाउ द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे वर हैविंग द स्पेशल पावर्स ड्यू टू इमरजेंसी। उन्होंने शो कर दिया कि भाई हमारा जो है वो एग्जिस्टेंस जो है दैट इज़ इन प्रॉब्लमेटिक वे। सो बट द थिंग्स विल वर नॉट इन दैट मैनर। अब रेजिस्टेंस ऑफ इमरजेंसी, इसके विरोध में, इसके प्रोटेस्ट में बाकी लोग भी सामने आने लगे। कैसे? जो अंडरग्राउंड हो गए थे, जो लोग अरेस्ट नहीं हुए वो अंडरग्राउंड होके प्रोटेस्ट कर रहे थे, छिपकर, हाइडिंग वे में। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट विच वॉज ड्यू टू इमरजेंसी। एंड जो आपके न्यूज़पेपर्स थे, कौन कौन से, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, दीज ऑल पेपर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पर्टिकुलर इमरजेंसी, कि दिस इज द रॉन्ग वे when the people the rights of the people are taken away from them and they are not treated in proper way। Then so many journalists were arrested because they were not allowed to express their views and the thoughts, so if they were doing so they were arrested। So this way, what we can say, this was the oppressive way, this was the way which how the people were bounded to remain silent। Few awards were written, writers were there, Shivaram and Phanishwar Nath Renu, these were the writers, those who have returned their award of Padma Shri, Padma Bhushan, अपने अवार्ड्स को भी रिटर्न कर दिया, बिकॉज दिस वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ट्रू स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं थी इमरजेंसी, दैट्स व्हाई दे रिटर्न देयर अवार्ड्स। सो दिस वॉज द वेरी important incident of Indian political history, that was emergency, that was declared by Indira Gandhi, and it was the dominating phase of her, कि domination कैसे किया जाए उस phase को reflect कर रही है।
देन चेंजेस वर मेड, क्या चेंज हुआ उसके बाद, जो आपका पार्लियामेंट के थ्रू क्या चेंज कराया उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं कुड नॉट बी चैलेंज्ड। ये बात कही कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अलॉन्ग विद दैट जो 42nd अमेंडमेंट था, देन 42nd अमेंडमेंट वाज आल्सो पास ड्यूरिंग इमरजेंसी। द अमेंडमेंट विच वॉज मेड 42nd अमेंडमेंट वो भी पास किया गया ड्यूरिंग दिस टाइम। एंड लाइक वॉट दे हैव मेंशन्ड हियर इन योर बुक दैट वेरियस चेंजेस मेड बाय दिस अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसमें बहुत सारे चेंजेस जो थे दैट वर क्रिएटेड। एंड इसमें से एक था कि ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द कंट्री वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 ईयर। अब लेजिस्लेचर का जो ड्यूरेशन था दैट वाज एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 6 years. Then what happened? Then the change was not only for the emergency period but it was for the permanent periods. Permanent period के लिए किया गया। Then elections can be postponed by 1 year, कि elections को हम 1 year के लिए postpone कर सकते हैं। This was also declared at this time. So these were the main consequences which happened during the time of emergency and how the people were reacting at that time, and they were not in favor of that. That also we have seen in this particular part. So there were some controversies regarding emergency also. The people were not very happy. They were not having the relevancy of the democracy, क्या ज़रूरी थी, क्यों किया गया, इंदिरा गांधी ने अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए ऐसा किया। So many issues were raised that we will discuss in the next part, how it was question marked by the people. So if anybody asking you about emergency, so this is the main thing कि when the high court ने जो बैन किया, उन्होंने restrict किया इंदिरा गांधी की जो इलेक्शन को, देन सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे किया, देन इमरजेंसी की बात आई, देन 52 की अकॉर्डिंग इमरजेंसी क्रिएट की गई, इसमें स्पेशल पावर्स गवर्नमेंट को मिली एंड फंडामेंटल राइट्स को बैन कर दिया गया, एंड इट वाज जस्ट क्रिटिसाइज्ड बाय ऑल द पीपल एंड द थिंग्स वर चेंज फ्रीक्वेंटली. This was the topic of the day. Do read the topic from the book so that you can know more about that. Few videos I will also send regarding this. You will be able to understand things more easily. आपको इसकी authenticity क्यों की गई, क्या की गई, या it was necessary or not, everything we will discuss in the next part also. You just do read from the book. So do revise, do note down the points in your notebook also. Thank you so much.